Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter number 8, the hack driver, from Footprint Without Foots of NCERT book from standard 10th. And in previous two videos, we have learned how a young lawyer working as a clerk in a law firm was sent to serve the summon to Oliver Lutkins, and when he reaches to the Oliver Lutkins village, he did not find him, and though he met a person, friendly nature person, he was strange to him, and he offered him his help. He told him that he will help him in search that Oliver Lutkins. फिर इसके बाद वो उसको अपना घोड़े गाड़ी पे बिठा करके और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जैसे कि फ्रिज के शॉप पे ले जाता है। फिर उसके बाद वो एक शेविंग शॉप पे ले जाता है, जहाँ पे वो बताया जाता है कि शेविंग करने गया होगा। गुस्तफा शॉप के ऊपर ले जाता है और एक दो जगह ले जाता है उसको। तो जैसा कि हम लोगों ने पेज नंबर 3 तक कंप्लीट किया था इन प्रीवियस टू वीडियोस, वी विल कंटिन्यू द स्टोरी इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। इन द लास्ट वीडियो वी हैव रीड कि वो लोग थक जाते हैं उसको ढूंढने के बाद। तो थकने के बाद जाहिर सी बात है लोगों को भूख लगती है, तो इन्होंने भी खाने के बारे में सोचा। How about something to eat? I suggested, let's go to a restaurant and I will buy you lunch. Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them, and they are all bad. Tell you what we will do. We will get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $50, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we'll go up to a Wade's Hill and enjoy the view while we eat. Now यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉयर जो है, ये जो क्लर्क है, उसको काफ़ी भूख लग रही होती है। तो उसको बोलता है कि काफ़ी भूख लगा, चलो किस रेस्टोरेंट में हम लोग बैठ के खाते हैं, मैं मतलब लंच खरीद दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। नाउ सी कि कैसे जो वो स्ट्रेंज व्यक्ति है, हैक ड्राइवर है, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। वो उसको बोलता है कि उसको घर का खाना मतलब घर में का खाना अच्छा लगता है, खास करके जब उसकी वाइफ जो खाना बनाती है तो उसको अच्छा लगता है, और वो रेस्टोरेंट का खाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है। हालांकि वो बताता है कि यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं हो, वहाँ बहुत गंदा खाना मिलता है। और साथ ही साथ वो ये बोलता है कि इससे बढ़िया है कि चलो मेरे घर चलो, वहाँ से मैं अपनी वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना जो है पैक करवा लूँगा, और तुम्हें ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा उसमें। हाँ, $50 मतलब उसके करीब लगेगा। और उसके बाद उस खाने को लेकर के हम लोग जो है एक वेड्स हिल है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बैठ करके हम लोग खाएंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे। नाउ ग्रीजी मील हियर मतलब ऑयली फूड, तेल वाला जो खाना होता है उसको ग्रीजी मील बोलते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट पैरा। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hours, at what was then a very high price. But he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm, but it could have been worth paying him
myself to have his presence, his cheerful country wisdom. It was very refreshing to a country boy like me who was sick of the city. As we sat on the hilltop, looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all live. On that day I came to know New Mullion better than I did the city, and to love it better. Now let me explain it. So in this paragraph, pastures, पहले तो हम लोग वर्ड मीनिंग कर लेते हैं. Pastures का मतलब होता है, what is the meaning of pasture? If you know that is grassland, जो घास वाला मैदान होता है. क्रिक्स का मतलब होता है स्ट्रीम और माइनर ट्रिब्यूटरी, जो पानी जिस रास्ते से होकर गुजरती है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नरेटर क्या बोलता है, कि नरेटर बोलता है कि दैट ही न्यू द विल वाज नॉट हेल्पिंग हिम. नरेटर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि विल जो है उसको एक्चुअली में मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका जो हेल्पिंग नेचर था वो कमाने के लिए था, वो पैसा उससे कमा रहा था. नरेटर मीन्स क्लर्क. और ही वॉज गेटिंग पेड फॉर द 6 आवर्स. उसको टोटल 6 घंटे के लिए मतलब उसको पैसे देने पड़े थे. उसमें जो है वो क्लर्क लंच का जो टाइम साथ में बिताता उसके भी पैसे उसको देने पड़े, जिसमें कि वो घोड़े गाड़ी से तो घूम नहीं रहा था, वो हिल टॉप पे जाके चुपचाप शांति से बैठ के खाना खा रहा था, लेकिन उसका भी पैसा उसको भरना पड़ा. फिर उसके बाद वो बोलता है कि उसके साथ में वो कंफर्टेबल था, क्योंकि उसको ये सारा पैसा जो है लॉ फॉर्म में रिम्बर्स हो जाएगा, उसको वापस मिल जाएगा जितना भी उसका खर्च हो रहा. तो इसके कारण से जो है वो उसको परेशानी नहीं था. एंड वो बोलता है ही फेल्ट इट टू बी डिसऑनेस्टी ऑन हिज ओन पार्ट, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने उसके रोल पे जो है उसको डिसऑनेस्टी जैसा महसूस हो रहा था. एनीवेज ही वॉज हैप्पी, वो खुश था इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसको एक कंपनी मिल रहा था, एक ऐसे व्यक्ति की कंपनी मिल रही थी जो काफ़ी चेयरफुल था, जैसा कि बिल मतलब शो ऑफ कर रहा था, उसको चेयरफुल होने का शो ऑफ कर रहा था, लेकिन पैसे भी पे कर रहा था. और वो बाद में ऐसा भी बोलता है कि व्हाइल दे वर सिटिंग ऑन द हिल टॉप, जब वो बैठ के हिल टॉप पे खाना खा रहे थे, तो वहाँ की जो खूबसूरती है, ग्रासलैंड है, और वहाँ से जो स्ट्रीम्स फ्लो कर रहे हैं, पानी का धार जो बह रहा है पहाड़ों के बीच से, तो ये सारी चीज़ें उसको मनमोहक लगी, क्योंकि क्लर्क के लिए ये सारी चीज़ बहुत खूबसूरत थी. एज ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ विलेज, वो एक विलेज से था, तो ऐसा कोई मैटर नहीं था कि उसको अच्छा ना लगे, बिकॉज वो लाइफ, सिटी लाइफ जो है काफ़ी उसको बोरिंग लगता था. बिल टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट द न्यू मिलियन, और बिल ने न्यू मिलियन के बारे में बहुत सारी बातें बताई उसको. उसने वहाँ के हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया. ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग एंड एवरी वन इन सच अ वे दैट ही फेल्ट लाइक एवरीथिंग हैड हैपेंड इन फ्रंट ऑफ हिज ओन आइज़. जिस तरीके से उसने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सारी चीज़ें उसके सामने, आंखों के सामने घटी हुई है. विल टोल्ड हिम अबाउट मिनिस्टर्स वाइफ. विल ने मिनिस्टर के वाइफ के बारे में भी बताया कि जो बहुत लाउडली गाती थी चर्च में जा कर के, जब भी वो मतलब उसके ऊपर डेट ज़्यादा होता था, उधारी ज़्यादा होता था. तो इसका मतलब ये हुआ कि
वो जब भी परेशानी में आती थी तो चर्च में जा कर के गॉड से प्रार्थना करती थी. Then there were some college boys who would dress in such a fancy way, and the lawyer's wife, who always failed in her attempt to make her husband wear both the collar and the tie on the same day. तो उसके बाद जो है वो कॉलेज के बच्चों के बारे में बात करने लगा कि कैसे वो लोग फैंसी ड्रेस पहनते थे. तो उसी टाइम पे जो लॉयर है सोच रहा होता कि कैसे उसकी वाइफ जो है अपने हस्बैंड को मतलब एक ही दिन पे कॉलर वाला जो एक शर्ट होता है उसके ऊपर टाई लगा करके पहनाने में कामयाब नहीं होती है. द नरेटर सेज दैट बिल नॉलेज ऑफ हिज विलेज फेलो वाज सो गुड. उसके बिल का जो जानकारी था उसके गांव वालों के लिए वो काफ़ी अच्छा था, और ये सारी बातें जो है उसको उस छोटे से गांव जो था न्यू मिलियन उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर रहा था. उसको उस गांव से प्यार हो गया था. He says that now he knew among almost everything. वो पूरे छोटे से गांव के बारे में सब कुछ जान चुका था, एंड उसको ये चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठ करके उस शहर के बारे में जान रहा है. Now narrator ये भी बोलता है, we left the peaceful scene of meadows and woods and resumed for our search of Oliver. फिर वहाँ से वो उस शांत वाली जगह से निकल करके बाहर आता है और फिर से ओलिवर के सर्च में जो है वो लोग लग जाते हैं, ढूंढने लगते हैं. So let's start. We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Will cornered a friend of Lutkins and made him admit that what he guessed, Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove out there, lying plans. Now, in this para, ओलिवर जो है कहता है कि विल जो है उसके बारे में बात करता है. जब वहाँ से वो लोग निकलते हैं तो वो उसके एक दोस्त को पकड़ता है जो कि ओलिवर के बारे में बता सकता था, और जब वो उससे पूछता है तो वो बोलता है कि वो यहाँ से कुछ देर पहले निकला है. वो अपने मदर के फार्म हाउस पे गया है जो कि यहाँ से 3 माइल्स नॉर्थ में है. तो वो फिर वहाँ के लिए निकल जाते हैं, फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं. I think I should complete this whole. Okay. So I know Oliver's mother. She's terror. Bill sighed. I took a trunk out there for her once, and she almost took my skin off because I did not treat it like a box of eggs. She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat, and she sure can talk. I'll bet Oliver heard that somebody's chasing him, and he has gone on there to hide behind his mother's skirt. Well, we'll try her, but you would better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. Now in this para, बिल जो है उसको बोलता है कि लुक वो ओलिवर की मदर को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि वंस ही टुक द डिलीवरी ऑफ अ ट्रंक फॉर हर. वो एक बार ट्रंक का डिलीवरी लेके गया था उनके लिए, तो उसकी मदर ने काफ़ी रूडली बिहेव किया, बैडली बिहेव किया, काफ़ी गुस्से से बिहेव किया, गुस्से से बात कर रही थी, अच्छे से केयर नहीं कर रही थी. और वो उसको मतलब विल जो है उसकी मदर, ओलिवर की मदर को
फिजिकल अपीयरेंस, मतलब ही डिस्क्राइब्ड हर फिजिकल अपीयरेंस दैट शी वाज 9 फीट टॉल, काफ़ी लंबी चौड़ी है, ठीक है। और उसको बोलता है कि एंड कंपेयर्ड हर क्विकनेस, उसका जो फुर्ती है वो एक बिल्ली से कंपेयर करता है। ही एडेड दैट द लटकिंस मस्ट हैव कम टू नो दैट दे वर सर्चिंग फॉर हिम। वो साथ में इस बात को भी मेंशन करता है कि लटकिंस को शायद ऐसा पता चल गया होगा कि हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं, और इसलिए जो है वो अपने मदर के घर पे चला गया होगा छिपने के लिए। ही ऑल्सो सजेस्टेड द नरेटर दैट नरेटर शुड लेट हिम डील, बोलता है कि तुम चुप ही रहना, मैं ही इस मैटर को डील करता हूँ, क्योंकि नो मदर एज मदर हैज़ डाउटेड दैट द क्लर्क वुड नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट। अगर मदर को डाउट हो गया तो क्लर्क उसको पकड़ नहीं पाएगा, उससे मिल नहीं पाएगा, और उसकी माँ के मुंह से सच्चाई जान नहीं पाएगा। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went to her and said, "Remember me, I'm Bill Maganson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver. I don't know anything about Oliver and I don't want to," she shouted. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हेन दे रिच, जब वो फार्म लैंड पे जाता है जहाँ पे खेत वगैरह होता है, तो वहाँ पे जाने के बाद वो एक काफ़ी जो मीन हैवी बिल्ट चीयरफुल लेडी थी, थोड़ी बूढ़ी थी, ओल्ड लेडी थी, उसके पास जा कर के वो बोलता है कि हम आपके मतलब उसने अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस किया। विल बेंट अप टू हर विथ गट्स इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट ही वाज बिल मैगनसन। वो बोलता है मैं बिल मैगनसन हूँ, और साथ ही साथ वो बोलता है कि वो उसके बेटे ओलिवर को ढूंढ रहा है। तो वो लेडी जो है काफ़ी चीखते हुए बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है, आई डोंट नो अबाउट हिम। नाउ look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. Will made me sound very important and the woman was impressed. She retired into the kitchen and we followed. She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first," she shouted and laughed at our threatened retreat. Now you can see here in this para, Bill got a bit strict. बिल जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के बोलता है उस लेडी से कि देखो दे हैड बीन थ्रू टफ एंड कंफ्यूजिंग थिंग्स। उसको काफ़ी परेशानी हुआ उसको ढूंढने में, और फिर बाद में वो क्लर्क को इंट्रोड्यूस करता है कि ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, वो सिटी कोर्ट से अपॉइंट करके भेजे गए हैं, और ही ऑल्सो सेड दैट दे हैड गॉट द लीगल राइट, और उसके पास लीगल राइट है उसके घर को सर्च करने के लिए। ओलिवर लटकिंस को उसके घर में सर्च किया जा सकता है। जब बिल इस तरीके की बात करता तो क्लर्क जो है काफ़ी खुश हो जाता है कि उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है बिल के साइड से। एंड इवन द लेडी सीम्ड इम्प्रेस्ड। लेडी भी ऐसा लगता है कि जैसे वो उसकी बातों को सुन के इम्प्रेस हो गई और उसको ढूंढने देगी। फिर वो किचन में जाती है। किचन में जाने के जब जाती है तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाता है टू देयर शॉक। और जब वो अंदर जाते हैं तो वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक हॉट आयरन जो है, गर्म सरिया जो है स्टोव के ऊपर रखा हुआ था, उसको उठा करके उन दोनों को धमकाते हुए बोलती कि वो उसको जला देगी, और उसके बाद वो हंसने लगती है। तो इस घटना के बाद जो है वो दोनों डर करके घर के बाहर निकल आते हैं। नाउ गाइज वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी
and the next part of the video, because it will go on. And stay tuned with the channel. We'll meet in the next part of the video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.